सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को बेथल फैमिली की ओर से इस सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग चंगा होंगे केवल प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा। आमीन। आइए हम अभी बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल से देखते हैं ड्यूटरनोमी 31:6 से। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you, he will never leave you nor forsake you. Amen. इस समय हम लोग प्रार्थना में थोड़ा टाइम गुजारेंगे। आइए हम सब लोग अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, Father. Thank you so much, Lord Father, for this wonderful time you have given us, Father. Father, as you have said in your word, Lord Father, gather in my name, whether you are 2 or 3, my presence will be there in midst of us, Father. I believe your presence is here in midst of us, Father. Thank you so much, Father, for this giving us a wonderful day, Lord Father. Once again, we are here and we can give you praise and honor, Father. I just want to pray, Father. Especially I want to pray, Lord Father, whatever the situation right now is going throughout the world, Lord Father, you know, Father, and I just want to pray, Father, let all this thing be stopped, or let all this thing be cast out in Jesus' name, Father. Father, whatever the situation the people are facing through because of this COVID-19, Lord Father, I just want to pray, Father, those people who got affected, Lord, I just want to pray, Father, you touch them and heal them in your name, Father, in Jesus' name, who is like Jehovah Rapha, the God who heals, Lord Father. I just want to pray, Father, for all the health workers, doctors, nurses who are doing continuously risking their life, all the police, Father. Lord Father, you give them strength, Father. You give them knowledge, wisdom, Lord Father. And I just want to pray, Father, for all the people, Lord Father. For whatever they are facing the issue, they may be terrified, they may be afraid, Lord, as you have said in Deuteronomy 31:6, Father. You're always with us. You'll never forsake us. Amen. So I just want to pray, Father, for our nation, for this world, Lord. I just want to pray, Lord. And I just surrender this service, Lord, our church, Lord, into your hand, Father. Let you be glorified, Father. Whatever we're going to do today, Lord, let your name be glorified. I surrender everything, all the praise and worship team, Pastor Rapan, who is giving us the word of God, Father. I just surrender into your hand, Lord. Fill them, Lord, and bless them, Lord, Father. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. अभी हम लोग सिस्टर बरसा से स्पेशल नंबर सुनेंगे और उसके बाद ब्रदर बनी और ब्रदर दोगे जो हम लोगों को प्रेजेंट वर्शिप में लिंक करेंगे। उसके बाद हमारा पास्टर अर्पण वचन लेके आ रहे हैं। आइए उन लोगों को ये टाइम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। Praise the Lord to everyone. Now we are going to sing a hymn song. The title is Holy, 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 which is based on Revelation chapter 4, verse 8. Now I will read the verse. It says, "The 4 living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within, and they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come." Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our souls shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore Thee, casting down their golden crowns around the
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह सभी को। आज फिर से संडे में हम सब आपके साथ फिर से हैं एंड वी वेलकम यू ऑन आवर ऑनलाइन सर्विस। और बैटल चर्च की तरफ से आप सभी को हम जय मसीह एक बार फिर से बोलते हैं। और हर रविवार को ना ये हमारा ऑनलाइन सर्विस हो रहा है और जो भी अभी देख रहे हैं हमारा उनसे दरख्वास्त है कि आप हर संडे को समय निकल के ना सुबह के 11 बजे से पहले आप तैयार हो जाइए। लिंक आपको भेज दिया जाएगा अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो। एंड May His presence be always with you through these videos, we pray. और हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति आराधना से पहले हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम उसकी उपस्थिति की अपेक्षा हम सबके साथ करेंगे। आप जहाँ पे बैठे हैं होली स्पिरिट वहाँ पे आएगा ना, पवित्र आत्मा भी वहाँ पे आएगा और वो आपके साथ में एक ऐसा मिठास वाला संगति देगा ना जो आपको नए तरह की जिंदगी में ले जाएगा। आइए हम इस गीत गाने से पहले हम धन्यवाद के साथ हम गाएंगे और उससे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रार्थनाओं के साथ। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। Father, we thank you for all the blessings we have. We thank you, Lord, for not forsaking us in all the situations, Lord. Father, we thank you. हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये समय आपने हम सबको दिया ताकि हम जहाँ भी हैं पिता वहाँ पे बैठ के हम पिता स्तुति आराधना कर पाए। परमेश्वर प्रभु, योग्यता से ज़्यादा आपने हम सबको प्रेम किया है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं उसके लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा।
साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तुझे धन्यवाद हम देते हैं प्रभु Thank you, Jesus, Lord, hallelujah. Recover us, Sedira Kuriara, Yeshua. Dhanyavad, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु पूरी संगति में तेरा उपस्थिति हमारे साथ में रहे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं थैंक यू सारी विधि प्रार्थना हम मांगते हैं तेरे उच्च और पवित्र नाम में यीशु ख्रिस्त के नाम में और हम सब कहते हैं आमेन 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 जय मसीह प्रेज द लॉर्ड अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप और भी हमारे साथ में रहेंगे और अभी हम ये समय पास्टर अर्पण को हम देना चाहेंगे और आप अपने हृदय को अपने मन को पूर्ण तरीके से परमेश्वर के वचन के लिए आप तैयार रखिए जय मसीह प्रेज द लॉर्ड आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में जय मसीह ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा आपके घरों में आना मेरे लिए आनंद और खुशी की बात है। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को और बढ़ा दिया। ये उन्होंने हमारे हित के लिए हमारे सुरक्षा के लिए उन्होंने ये किया है। तो मैं इसलिए आप सभी को मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के संगति में अपने परिवार के साथ आप समय बिताइए। प्रियो, हम लोग अंत के दिन में हम लोग जी रहे हैं। परमेश्वर का आना बहुत ही निकट है। प्रभु कोई भी समय आ सकता है। जीसस कैन कम एनी टाइम चर्च। तो आप पर मुझे क्या करना है? आप पर मुझे तैयारी के साथ उनका प्रतीक्षा करना है प्रियो। और तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं? वचन में मन लगा के, प्रार्थना में मन लगा के, आराधना में मन लगा के, परमेश्वर के बारे में सोच के प्रियो, परमेश्वर के गीत गा के आप और हम परमेश्वर के आने का हम लोग तैयारी कर सकते हैं प्रियो। आज का जो मेरा वचन का शीर्षक है, मेरा टॉपिक है, वो है सीकिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का उपस्थिति को ढूंढना। आज हम लोग परमेश्वर का आशीष को हम ढूंढते हैं। आज हम परमेश्वर की चंगाई को ढूंढते हैं। आज हम परमेश्वर की भरीपूर्णता को ढूंढते हैं। आज हम परमेश्वर की शांति को ढूंढते हैं। पर बहुत ही ऐसा कम विश्वासी है जो सचमुच में परमेश्वर का उपस्थिति को ढूंढता है, जो सचमुच में ये कहता है कि प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। जब आजकल हम प्रार्थना भी करते हैं तो एक रिक्वेस्ट फॉर्म के जैसा हम परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं। हम हमारे प्रार्थना में बोलते हैं, प्रभु मेरा ये बीमार है, प्रभु ये चंगाई कर दो। प्रभु मेरा बच्चा का ये एग्जाम है, प्रभु आप उसको पास कर दो। प्रभु मेरा नौकरी में ये समस्या चल रहा है, आप ये कर दो। प्रभु मेरे पास पैसा नहीं, आप पैसा जुटा दो। आमेन बोल के हम क्या कर देता है? वो फॉर्म को हम डिपॉजिट कर देता है। प्रभु से संबंधित नहीं है। बहुत ही कम ऐसा विश्वासी है जो सचमुच में प्रभु की उपस्थिति में आके बोलता है कि प्रभु मुझे आपको जानना है, आपके चेहरा को प्रभु मुझे देखना है, आपके साथ मुझे ऐसे बैठना है, आपकी आवाज को मुझे सुनना है। अगर हम लोग बाइबल को देखते हैं प्रियो, प्रभु ने आप और मुझे उनकी उपस्थिति में बुलाया है प्रियो। प्रभु ने आप और मुझे उनकी उपस्थिति को ढूंढने के लिए बुलाया है। अगर हम पूरा बाइबल में देखते हैं तो 160 से भी ज़्यादा बार इसका उल्लेखन किया गया है परमेश्वर का ढूंढने का विषय में। More than 160 times the Bible talks about seeking God. यहाँ पे एक फेमस पद में आपके साथ में पढ़ना चाहूँगा। यशायाह 55 का, आइज़ाया 55 verse 6 and 7। यहाँ पे अगर हम आगे में देखते हैं तो यशायाह अगम वक्ता
भरिपूर्ण जीवन, अबंडेंट लाइफ के बारे में वो चर्चा करते हैं। वो बोलता है अगर कोई प्यासा है आओ, पानी की तरफ आओ, परमेश्वर की तरफ आओ। और वो ये बोलते हुए नीचे में आके 6 और 7 में बोलते हैं, सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड। परमेश्वर को ढूंढो जब वो मिल रहा है। कॉल अपॉन हिम व्हाइल ही इज नियर, जब वो नजदीक में है प्रभु को क्या करो, पुकारो। लेट द विकेड forsake his way and the unrighteous man his thoughts, let him return to the Lord and he will have mercy on him and to our God, for he will abundantly pardon। यहाँ पे लिखा गया है बुरे मनुष्य, कुकर्म करने वाले मनुष्य अपने सारे कुकर्म को क्या करो, छोड़ दो, बुरे काम को छोड़ के परमेश्वर को ढूंढो। प्रियो, परमेश्वर के वचन आप और मुझे यही सिखाता है कि आप और मुझे परमेश्वर को ढूंढना बहुत जरूरी है। अपने खराब कामों से हमें पश्चाताप करके हमें उसको छोड़ के परमेश्वर को ढूंढना बहुत जरूरी है। प्रियो, समय निकट आ चुका है, प्रभु का आने का समय एकदम नजदीक है। प्रियो, आप और मुझे परमेश्वर को ढूंढना बहुत जरूरी है। आमीन। और खुशी की बात ये है कि बाइबल में ये भी उल्लेखन किया गया है कि परमेश्वर के नजर उनके तरफ में है जो परमेश्वर को ढूंढता है। और ये राजा दाऊद अपने एक भजन में वो लिखता है। प्रियो, राजा दाऊद ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को बहुत ढूंढता है। उनके गीत हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं, उनके शायरी हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं, उनके भविष्यवाणी हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं। और ये सब चीज उन्होंने कब लिखा, कहाँ पे लिखा? उन्होंने वो समय में लिखा जहाँ पे वो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। यहाँ पे मैं एक साम्स में पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 14:2, साम्स चैप्टर 14 वर्स 2। यहाँ पे लिखा गया है, द लॉर्ड लुक्स डाउन फ्रॉम हेवन अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ मैन। परमेश्वर स्वर्ग से आप और मुझे देखता है, टू सी इफ देयर आर एनी हु अंडरस्टैंड हु सीक गॉड। ये देखने के लिए वो स्वर्ग से देखता है कि कोई है जो मुझे ढूंढ रहा है। प्रियो, जैसे आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे आप आज वचन पढ़ रहे हैं, आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर आपको देख रहा है। आमीन। परमेश्वर ये देख रहा है कि क्या मेरा बेटा या बेटी कोई है जो मुझे ढूंढ रहा है। इज देयर एनीवन हु इज सीकिंग मी? सच अ प्रिविलेज, इतना आनंद की बात कि जो परमेश्वर ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, जो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, प्रियो, वो परमेश्वर आप और मुझे देख रहा है। और क्यों देख रहा है? ये जानने के लिए कि क्या आप और हम उनको ढूंढ रहे हैं। मैं आज आपके साथ में ऐसा 3 पॉइंट में शेयर करना चाहूंगा कि जब आप और हम परमेश्वर को सच्चा हृदय से ढूंढते हैं तो आप और मेरा जीवन में क्या होता है। What happens when we truly seek God? जब एक सच्चा मन से हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो आप और मेरा जीवन में क्या होता है। नंबर 1, seeking God brings blessing and honor। जब आप और हम परमेश्वर को ढूंढते हैं सच्चा मन से तो आप और मेरा जीवन में आशीष और आदर प्रभु आप और मुझे देता है। प्रियो, एक बहुत ही फेमस बाइबल वर्स मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में लिखा गया है, मत्ती 6:33 में, कि परमेश्वर के राज्य और उनके धार्मिकता का खोज करो, सीख करो और तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। आज समस्या क्या है? हम लोग सब कुछ खोज कर रहे हैं, हम आशीष को खोज कर रहे हैं और हमें मिलता भी नहीं है। प्रॉमिस क्या है? प्रतिज्ञा ये है कि परमेश्वर को खोज करना है। प्रियो, परमेश्वर को ढूंढना है, सीक गॉड। और उसके बाद में आप और मेरे लिए आशीष क्या है? सब कुछ आपको दिया जाएगा। प्रियो, वचन में इतना एक वचन में प्रोवर्ब्स में ऐसा लिखा गया है कि धर्मी जन के पीछे में आशीष दौड़ता है। आप और मुझे आशीष के पीछे दौड़ने का जरूरत नहीं है। आप जहाँ जहाँ जाएंगे, अगर आप धार्मिक हैं, अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो आशीष आपके पीछे पीछे आएगा। प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं
तो प्रभु आप और मुझे क्या देता है? आशीष देता है। और मैंने ये भी कहा कि आशीष और आदर देता है। प्रिय, बाइबल में अगर हम लोग सब व्यक्ति का जीवन में अगर हम लोग देखते हैं तो उन्होंने एक विश्वास का जीवन को जिया है, पर हम उनके जीवन को देख के हम उनको आदर नहीं देते हैं। हम उनको क्यों आदर देते हैं? हम उनको इसलिए आदर देते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा है। प्रियो, हम लोग उनको इसलिए आदर देते हैं क्योंकि उन्होंने ख्रिस्त के, प्रभु यीशु ख्रिस्त के फुटस्टेप को उन्होंने क्या किया है? फॉलो किया है। प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर के सिखाए हुए रास्ते में चलते हैं, जब आप और हम परमेश्वर के वचन को हम पालन करते हैं, जब आप और हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, तो प्रभु आप और मुझे आदर देता है। प्रियो, पूरे संसार के बीच में प्रभु आप और मुझे आदर देता है। प्रियो, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। सो नंबर 1 हम लोग को जानना क्या जरूरी है कि जब आप और हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, आपको आशीष और आदर परमेश्वर देता है। प्रियो, मुझे पता नहीं आपका जीवन में क्या जरूरत है आज, मुझे पता नहीं आपका जीवन में क्या समस्या है आज, मुझे पता नहीं आप क्या चीज के पीछे में भाग रहे हैं आज, पर परमेश्वर का प्रतिज्ञा यही है कि अगर आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं तो प्रभु क्या देता है? आप और मुझे आशीष देता है। प्रियो, आप और मेरा जरूरत को पूरा करता है और प्रभु आप और मुझे आदर भी देता है। आमेन, हालेलुया। सेकंड पॉइंट, seeking God helps us to break the power of sinful desires. जो आप और मेरा पाप करने का इच्छा, जो आप और मेरा गलत करने का इच्छा अंदर से जागता है, उससे भी जब आप और हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो प्रभु क्या कर देता है? पवित्र आत्मा वो इच्छा को तोड़ देता है। प्रियो, मुझे पता नहीं आज के मॉर्निंग, आज के दिन में आप कौन सा परीक्षा से आप जूझ रहे हैं। मुझे पता नहीं कौन सा टेम्पटेशन आपके लिए बहुत भारी हो रहा है। आप प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूँ, पर ये चीज की वजह से मैं नहीं दे पा रहा। मुझे पता नहीं वो क्या परीक्षा से आप जूझ रहे हैं, पर जब आप और हम सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं प्रियो, तो प्रभु आप और मुझे वो परीक्षा के ऊपर में विजय करने के लिए प्रभु आप और मुझे सक्षम करते हैं। प्रियो, दाऊद का बारे में अगर हम देखते हैं तो दाऊद ने एक भजन संगीता लिखा है। प्रियो, सबसे लंबा साम्स 119, और उसका 11 पद में उन्होंने ऐसे तरीका से लिखा है। यहाँ पे मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। साम्स 119 का 11 में यहाँ पे लिखा गया है, योर वर्ड आई हैव हिडन इन माई हार्ट दैट आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट यू। दाऊद बोलता है कि प्रभु आपका वचन मैंने अपने हृदय में क्या किया है? मैंने उसको छुपा के रखा है ताकि मैं आपके विरुद्ध में क्या ना कर सकूं? पाप ना कर सकूं। प्रियो, जब तक आप और मेरे हृदय में परमेश्वर के वचन नहीं है, जब तक आप और मेरे जीवन में परमेश्वर के ढूंढने वाले ऐसा वस्तु, ऐसा बात आप और मेरे जीवन में ऐसा इच्छा नहीं है, तब तक आप और हम कभी भी पाप के ऊपर में हम विजय नहीं हो सकते हैं। प्रियो, आप और मुझे अगर पाप के ऊपर में, परीक्षा के ऊपर में अगर विजय होना है तो आप और मुझे परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में होना बहुत जरूरी है। प्रियो, मत्ती के जीवन में अगर हम लोग देखते हैं तो बाइबल में ये लिखा गया है कि मत्ती एक कर उठाने वाला व्यक्ति था, टैक्स कलेक्टर था। वो अभी का जमाना में टैक्स कलेक्टर का एक इज्जत समाज में अधिक है, पर पुराने जमाने में ऐसे नहीं था। पुराने नियम में अगर कोई कर उठाता था तो उसको नीचे दर्जा का आदमी बोल के उसका नजर सोसाइटी में अच्छा नहीं होता था। प्रियो, ऐसा क्यों? क्योंकि वो इजरायली होते हुए, यहूदी होते हुए वो रोमी सरकार के लिए वो कर उठाता था। और दूसरा बात, वो अपने ही लोगों को वो ठग करके, अगर मान लीजिए 20 रुपये उठाना है तो वो कितना उठाता था? 50 रुपये उठाता था। वो 30 रुपये अपना पॉकेट में डालता था और 20 रुपये जाके क्या कर देता था? सरकार को दे देता था। तो उसको अपना ही आदमी उसको पसंद नहीं करता था। प्रियो, मत्ती क्या करता था? अपने आदमी को ठगता था। प्रियो, पर ये आदमी ने जब परमेश्वर के साथ उसने समय बिताया, जब परमेश्वर को मिला,
जब परमेश्वर को ढूंढने उसने शुरू किया प्रियो, उसका जीवन बदल गया। प्रभु ने उसको अपने चेलों में से एक बनाया प्रियो। मुझे पता नहीं आज आपका कमजोरी क्या है, मुझे पता नहीं आपका परीक्षा क्या है, पर अगर आप और हम सचमुच में प्रभु यीशु को ढूंढते हैं प्रियो, तो प्रभु आप और मेरा परीक्षा से सब हमें मुक्त कर देता है प्रियो। मेरा जीवन का गवाही अधिक है प्रियो। मेरा जीवन में मैंने बहुत गलत काम किया है। मेरा जीवन में मैंने वो सब चीज़ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं गलत संगत में था प्रियो, और मैं अच्छा होने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, पर मैंने कभी भी अच्छा हो नहीं पाया प्रियो में। पर जब मैंने परमेश्वर को ढूंढने शुरू किया, जब मैंने प्रभु के बारे में जाना, प्रभु के प्रेम के बारे में जान के उनके साथ समय बिताने लग गया प्रियो, परमेश्वर ने मुझे इच्छा दिया वो सब परीक्षा से अलग बैठने के लिए। प्रभु ने मेरा जीवन में मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं वो परीक्षा से मैं खुद ब खुद मैं उसे दूर चला गया प्रियो। मुझे पता नहीं आज आपके जीवन में क्या परीक्षा है, मुझे पता नहीं आप क्या बोझ लेके अपने जीवन को जी रहे हो, पर जब आप परमेश्वर को ढूंढते हो, जब प्रत्येक सुबह आप उठ के आप बोलते हो प्रभु मुझे आपके बारे में और ज़्यादा जानना है, तो प्रभु आपको छुटकारा देगा। आमीन, हालेलुया। और लास्ट इम्पोर्टेंट बात, परमेश्वर ने कलवरी क्रूस में आप और मुझे छुड़ाने के लिए, आप और मुझे स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने अपना प्राण दिया है। आमीन, उन्होंने आप और मुझे मुक्ति देने के लिए प्रियो अपना प्राण कलवरी क्रूस में दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 3 पॉइंट, सीकिंग गॉड गिव्स अस विक्ट्री। जब आप और हम परमेश्वर को हम ढूंढते हैं तो प्रभु आप और मुझे विजय देता है, विक्ट्री देता है। आप अपने जीवन के कोई भी बैटल में हो, मुझे पता नहीं क्या बैटल में हो, शायद आप अभी के परिस्थिति कोरोना वायरस की वजह से आप डर रहे हो, या अपने जीवन में अपने पर्सनल लाइफ का स्ट्रगल्स में हो, पर जब आप और हम परमेश्वर को ढूंढते हैं प्रियो, प्रभु आप और मुझे विजय देता है। सबसे बड़ा विजय मनुष्य के जीवन में अगर आज तक कुछ है विश्वासी के जीवन में, तो वो विजय है परमेश्वर के क्रूस का दास्ता और परमेश्वर की पुनरुत्थान। द क्रूसिफिक्शन एंड रेजुरेक्शन इज द ग्रेटेस्ट विक्ट्री अ बिलीवर कैन हैव। आप और मेरे जीवन में अगर कुछ ऐसा सबसे बड़ा विजय है तो वो परमेश्वर के कलवरी क्रूस और परमेश्वर के पुनरुत्थान है। आमीन। पर मैं आज आपको एक बाइबल से ऐसा उदाहरण देना चाहूँगा कि जब आप और हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो कैसे प्रभु आप और मुझे विजय देता है। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, अगर आप दूसरा इतिहास 20 में आप पढ़ेंगे तो बाइबल में यहाँ पे एक वार के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। वो टाइम में जुदा का राजा का नाम था जेहोशफेत। राजा जेहोशफेत परमेश्वर का भय रखता था, परमेश्वर को प्रेम करता था, और बाइबल में लिखा गया है एक दिन मोआबाइट्स, एमोनाइट्स और मियूनाइट्स ने क्या किया, ये तीनों राज्य मिलके इन लोग ने एक प्लानिंग बनाया और बोला कि चलो जुड़ा के अगेंस्ट में हम लोग क्या करेंगे, इन लोग को वार करेंगे, इन लोग को ख़त्म कर देंगे बोल के इन तीनों ने क्या किया, प्लानिंग किया। और ये तीनों ने प्लान करके इन्होंने स्टार्ट किया अपना जर्नी लड़ाई करने के लिए। और जैसे जैसे इन लोग ने अपना जर्नी को स्टार्ट किया तब राजा जेहोशफेत को खबर आया और बोला कि ये तीनों राज्य से क्या कर रहा है, हम लोग को अटैक करने के लिए वो लोग आ रहे हैं। और बाइबल में लिखा गया है राजा जेहोशफेत बहुत ज़्यादा डर गया, और डर के मारे उसने क्या किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। अब बाइबल में लिखा गया है वर्स 4 20:4 में अगर आप देखते हैं तो बाइबल में लिखा गया है सब लोग परमेश्वर के उपस्थिति में आके परमेश्वर को ढूंढने लग गया वो लोग। द बाइबल सेज ऑल केम टू सीक द लॉर्ड। अगर वर्ष 13 में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है बच्चे से लेके सब, पत्नी से लेके सब लोग क्या किया, बूढ़े आदमी लोग सब आके परमेश्वर की उपस्थिति में आके उन लोग ने क्या किया, ढूंढने लग गया परमेश्वर को। और परमेश्वर उन लोग को क्या करता है, उन लोग को परमेश्वर बोलता है कि मत डरो। और दूसरा दिन जब लड़ाई का समय आता है प्रियो, बाइबल में लिखा गया है राजा जेहोशफेत अपने आर्मी को लेके गया लड़ने के लिए, पर उन्होंने तलवार लेके नहीं गया प्रियो, उन्होंने तोप लेके नहीं गया, उन लोग ने चाकू लेके नहीं गया,
उन लोग ने कुछ भी हथियार नहीं लेके गया। वो लोग ने क्या किया, एक वर्शिप टीम बनाया। उन लोग ने गाना गा के, बाजा बजा के वो लोग क्या किया, लड़ाई लड़ने के लिए गया। और जैसे बाइबल में लिखा गया, जैसे ये लोग गाना गा रहा था, जैसे ये लोग आराधना कर रहा था, वैसे क्या हो गया, ये 3 राज्य के बीच में परमेश्वर ने कंफ्यूजन का आत्मा दे दिया। और इतना कंफ्यूज हो गया कि ये 3 राज्य क्या हुआ, एक दूसरे को वो लोग मारने लग गया प्रियो। और बाइबल कहता है कि जब राजा जेहोशाफात और उसका आर्मी लड़ाई भूमि में वो लोग पहुंच गया, तब क्या हुआ था, सब लोग मरे हुए थे। और उन लोग का काम क्या था कि जो वहाँ पे बचा हुआ हथियार था, जितना भी धन संपत्ति था, उसको बटोर के क्या करना है, वापस लाना है। प्रिय हो, परमेश्वर ने उन लोग को इतना ज़्यादा विजय दिया, इतना बड़ा विक्ट्री दिया कि बाइबल में लिखा गया है वो सब लेके आने के लिए उन लोग को कलेक्ट करने के लिए, लेके आने के लिए उन लोग को 3 दिन लगा। प्रियो, इतना बड़ा विक्ट्री परमेश्वर ने उन लोग को दिया। वो भी कैसा परिस्थिति में, वार के परिस्थिति में वो लोग डरे हुए थे, पर डर के बावजूद परमेश्वर ने उन लोग को इतना बड़ा विक्ट्री दिया। प्रियो, मैं आपको यही इनकरेज करना चाहूँगा, अगर आप और हम सच्ची में परमेश्वर के उपस्थिति को हम ढूंढते हैं प्रियो, तो प्रभु आप और मुझे बड़ा बड़ा विजय देता है। प्रियो, हमारे समझ से भी वो बाहर हो सकता है, हमारे कोशिश से वो बाहर हो सकता है, पर सचमुच में प्रभु आप और मुझे वो विजय देगा। आइए हम सब मिलके हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जहाँ पे आज सब लोग पिता अपने फायदे के लिए आशीष ये ढूंढ रहे हैं पिता, अपने फायदे के लिए प्रभु, अपने स्वार्थ के लिए पिता, वो लोग अपने लिए खाली पिता वो जैसे वस्तुएं पिता वो ढूंढ रहे हैं पिता। हमें ऐसा बेटा और बेटी बनाओ पिता, जो आपकी उपस्थिति में ढूंढते हो पिता। और आपके वचन के में प्रतिज्ञा किया है पिता कि जो भी आपकी उपस्थिति को ढूंढता है पिता, उसको आप आशीष देंगे, उसको आप आदर देंगे प्रभु, उसका प्रार्थना को आप सुनेंगे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने हम प्रत्येक के साथ बात किया पिता। सचमुच पिता, हम आपकी उपस्थिति हम ढूंढना चाहते हैं पिता, आपकी उपस्थिति में ही विजय है पिता, हम जानते हैं पिता। अभी जैसे पिता हम ये पूरा हफ्ता हम जीते हैं पिता, हमें सुरक्षा रखे पिता, हमारे परिवार के साथ आप रहे, आपके अनुग्रह आशीष हमारे जीवन में प्रशस्त हो पिता। हम धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। जय मसीह।